Hello students, good morning. Welcome once again to our video of mathematics part 4 of the class 8. We are discussing understanding quadrilaterals chapter number 3 CBSE mathematics, right? So up to the part 3 we have completed the 3 exercise, and in this part we will see about the exercise 3.4, but before that we will see some examples, right? Because in the last exercise most of the question they were asked about the parallelogram, but in this exercise some questions which is asking about the special parallelogram, just like the rhombus, rectangle and squares, right? So along with the parallelogram we should also know the other quadrilaterals, as we have seen the property of the other quadrilateral in the previous video. Today we will see the rhombus, rectangle and square. So what is the property of rhombus? We have seen in the last chapter, right? Last video. So what we can see that rhombus is also the parallelogram, and all the property of the parallelogram sustained by the rhombus, right? And the one property is also that the diagonal of the rhombus are perpendicular bisector of one another. As you can see on the screen in the yellow color, I highlighted that the diagonal of a rhombus are perpendicular bisector of one another. So on the basis of this property we can solve the example number 7, right? What is the example number 7? As you can see on the screen, rice is a rhombus, find x y z and justify your findings. यहाँ पर आपको एक rhombus दिया हुआ है. As you can see on the screen, this is the rhombus and the name of the rhombus is rice, R-I-C-E. R-I-C-E, these are the 4 vertices and we have to find the x, y and z, right? X, y, z, these are the sides and the diagonal of the rhombus. So what we can see that we know that property of the rhombus is the diagonals are equal and diagonals are perpendicular bisector, और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? सो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं. सो हमको यहाँ पर x और y फाइंड करना होगा. सो व्हाट इज x? वी कैन सी दैट इज द OE, दैट इज द x एंड OR दैट इज y. तो ये हमको फाइंड करना है एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द RI दैट इज द z. ये भी हमको यहाँ पर फाइंड करना है, राइट? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई. आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट इज OE, राइट? सो OE इज x एंड y इज इक्वल टू OR, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको. यहाँ पर OR दैट इज y, OE दैट इज इक्वल टू x. यू कैन ऑल्सो सी इन द फिगर, राइट? ये चीज़ है. तो इनको आपको यहाँ पर जनरली फाइंड करना है, राइट? तो ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस, राइट? सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं. जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर OI, ये जो OI है ये हमको 5 दिया हुआ है. हियर यू कैन सी दिस इज द 5, राइट? तो यहाँ पर OE कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 5, राइट? एंड हियर यू कैन सी दैट OC, यहाँ पर ये जो OC है ये आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज़ 12. सो यहाँ पर जो OR होगा ये भी कितना होगा? 12 होगा, राइट? एंड एज वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, सो यहाँ पर आप ER जो देख रहे हैं वो 13 है, तो यहाँ पर RI जो होगा वो भी क्या होगा? 13 होगा. दैट इज़ द 13 सेंटीमीटर और 13 मीटर, वॉट एवर द यूनिट, राइट? सो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को, बिकॉज रोम्बस में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट? नाउ वी कम टू द another parallelogram or another quadrilateral which is the rectangle. You can see on the screen, and rectangle की जो property है, rectangle is also the parallelogram. So all the property of parallelogram that is applicable for the rectangle, as well as you can see the property the diagonal of a rectangle are of equal length. यहाँ पर इसके जो डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल, वो सारे बराबर होते हैं. दोनों ही डायगोनल जो हैं बराबर होते हैं. इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8. और इस एग्जाम्पल नंबर 8 में यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका नाम है रेंट, RENT, रेंट. सो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, इट्स डायगोनल मीट एट O. सो एज यू कैन सी दैट व्हाट आर द डायगोनल्स. यहाँ पर आपको डायगोनल्स क्या दिख रहे हैं? RN, this is the one diagonal, and ET या TE, these are the 2 diagonals.
और ये दोनों डायगोनल जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, राइट। तो दोनों डायगोनल बराबर होने की वजह से यहाँ पर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर एन, राइट, आर एन दैट इज़ इक्वल टू ई टी या टी ई, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर ये लिख सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि इनकी लेंथ कितनी है, राइट। तो लेंथ कितनी है इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में क्या कहा जाता है, द डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। सो वी कैन डू दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ओ टी दैट इज़ 3x + 1, राइट। तो यहाँ पर ये ओ ई जो होगा वो भी कितना होगा, 3x + 1 होगा। एंड हियर यू कैन सी आर ओ, सो दैट आर ओ इज़ 2x + 4, सो ओ एन जो होगा वो भी कितना होगा, 2x + 4 होगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, राइट। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, सो यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 3x, राइट, 3x + 1, राइट, एज इक्वल टू 2x + 4, राइट। सो इफ़ वी take this 2x onto the right hand side, so it become 3x minus 2x, and this 1 will transform to the right hand side, so this is the 4 minus 1, right. So 3x minus 2x that is equal to x, and that is equal to 3. So x is equal to 3. तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल जाती है, और x की वैल्यू मिलने के बाद हम इसकी लेंथ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। So as you can see that here the value of x is 3, right. So if we consider OT, right, if we consider OT, अगर हम यहाँ पर OT देखें, so OT दिया है 3x + 1. So if we put the value of x, right, if we put the value of x, so what we will get, 3 × 3 + 1, so that would be equal to 10. यानी कि यहाँ पर ये जो OT है ये 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर होगा, राइट। एज वेल एज यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको यहाँ पर ओ आर दिया हुआ है, राइट, ओ आर दिया है, राइट, हमको कितना दिया है, ओ आर। तो ओ आर भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सो ओ आर दैट इज इक्वल टू 2x + 4, ओ आर दैट इज इक्वल टू 2x + 4. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, सो 2 × 3 + 4, राइट. सो 2 3s are 6 + 4, तो 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पर जो हमको ओ आर दिया है वो भी क्या होगा, 10 होगा, राइट. सो द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच. यहाँ पर दोनों जो डायगोनल होंगे वो होंगे हमारे 20 सेंटीमीटर के, राइट. तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हो जाएगा, राइट. नाउ वी सी the square, right. Here in the diagram belt, right, here you can see the square belt, BELT, these are the vertices, and here you can see ET and BL, these are the diagonal, and O is the midpoint of those diagonal, and diagonals are perpendicular bisector of each other, right. So this is the property of the square. So on the basis of property of square, what is the property? The diagonal of square are perpendicular bisector of each other, जो कि अभी हमने यहाँ पर डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट. सो एज वी हैव लर्नड अबाउट द अदर क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, जैसे हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारे हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं. ट्रेपेजियम भी हमने डिस्कस किया है. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज एक्सरसाइज 3.4. नाउ यू विल बी एबल टू do the exercise 3.4. So in the first question you can see that state whether true or false. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हमको दिए हैं, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको यहाँ पर बताना है. Now we see the question number 1, that is the true and false, right. तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. जैसे कि फर्स्ट दिया है A, all rectangles are square. क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है? So that is false, right. So we can write F. ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. जितने भी रोम्बस है क्या वो पैरेललोग्राम है? सो दिस इज ट्रू. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट.
जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, राइट. तो ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं. ऑल काइट्स ऑफ आर रोम्बसेस, नो, it is false. All kites are not rhombuses, right? All rhombuses are kites, so we can say yes, all rhombuses are kite, right? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं. All parallelogram are trapeziums, जितने भी पैरेललोग्राम है वो क्या ट्रेपेजियम है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ट्रेपेजियम हैव द नॉन पैरेलल साइड्स एंड पैरेललोग्राम हैव द पैरेलल साइड्स. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर है क्या वो ट्रेपेजियम है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम में हमने देखा था, राइट. तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पर. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 राइट एंगल्स. तो इन क्वाड्रिलेटरल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड 4 राइट एंगल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं तो उसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्क्वायर. तो स्क्वायर और रोम्बस ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें 4 साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं. 4 राइट एंगल्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहाँ पर ये दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसमें चारों जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं. एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज. Explain how a square is a quadrilateral, a parallelogram, a rhombus and a rectangle. यानी कि यहाँ पर जो स्क्वायर है it possess the property of all these given quadrilaterals. यानी कि एक स्क्वायर जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, राइट. तो ये बात हम जानते हैं. स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है, बिकॉज इट कंटेन 4 वर्टाइसेस, 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स. स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, बिकॉज both the equal pair of opposite sides are parallel to each other, इसीलिए ये जो है parallelogram होगा. and it is also rhombus because all the 4 sides are equal to each other, right, and the diagonals are also perpendicular bisector, right. rectangle, square is also the rectangle because it has the 90 degree angle. चारों एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, इसलिए रोम्बस में भी चारों एंगल, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बोथ आर सेम, राइट. सो नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड आर इक्वल. तो ये जो हमने प्रॉपर्टी का जो लास्ट वीडियो में जो चार्ट देखा था वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है. हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस देखा था. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम रेक्टेंगल को इसलिए कहते हैं बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल है एंड बोथ दिस डायगोनल्स लाइज इन द इंटीरियर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, नॉट आउटसाइड एरिया, नॉट द एक्सटीरियर एरिया, राइट. इसलिए हम यहाँ पर इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, राइट. फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एंड यू ऑल्सो हैव द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. और यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल. एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है O, राइट, दिस पॉइंट O विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. यानी कि यहाँ पर हम बताएंगे कि OA, OC और OB ये तीनों जो होंगे बराबर होंगे, राइट. द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है. ये डॉटेड लाइन जो है वो आपको एडिशनली आपके मदद के लिए दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जब डॉटेड लाइन अगर नहीं दी होंगी सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल. अगर ये डॉटेड लाइन यहाँ पर ना होती, राइट, ये इतना पार्ट अगर यहाँ नहीं होता, राइट, सपोज यहाँ पर इसको मैं अगर हटा दूँ, राइट, तो ये डॉटेड लाइन अगर यहाँ ना हो सो दिस इज़ ओनली द ट्रायंगल. यहाँ पर ये ABC जो होगा ये एक अलग ट्रायंगल होगा, राइट, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द rectangle. So friends, by this exercise this chapter is over and I hope कि ये chapter आपको बहुत अच्छा लगा होगा because it also have the mathematical calculation and it also talks about the geometry part of the mathematics. तो geometry और algebra दोनों का ये combination है understanding quadrilateral. तो काफ़ी मज़ा आया होगा आपको. And now you will be able to do the test for that.
राइट। इसके लिए आप अब एग्जामिनेशन और टेस्ट के लिए जब आप ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लेंगे, सो यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा आपको ये लगा होगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। So thank you very much for watching this video. Keep watching, keep learning and keep enjoying the mathematics. Have a nice day.